Hello students, welcome back to my channel. This is your Radharani ma'am and I'm going to teach you today main clause and subordinate clause. Children, in my last video I have already taught you the difference between phrase and clause. And I had also given you a bit introduction on principal clause and subordinate clause. Children, today I am here with an exercise on principal clause and subordinate clause. So, before we begin the exercise, let us recapitulate. Children, what did I say about clause? I said a clause has a combination of subject and verb. Children, if either subject is missing or verb is missing in the group of words, then we cannot call it a clause. Children, a clause has to have the combination of a subject and a verb. When both subject and a verb will be present in a group of words, then only that group of words will be called a clause. Right, children? So, two things have to be present. One is the subject and the other is the verb. A clause has to have the subject verb combination. Right? Now, let us move on to main clause and subordinate clause. Now children, what is main clause? Main clause is a group of words which is able to express a complete meaning, which makes complete sense or expresses a complete meaning, is called principal clause. Principal clause is also called main clause or independent clause. Now, why it is called independent clause? Because it is able to exist alone. It is able to express a meaning of its own, right? But what about subordinate clause? It is also a clause. It also has the combination of subject and verb. But children, it is not able to express a complete meaning. So what did I say, children? That a main clause expresses a complete meaning, but a subordinate clause does not express a complete meaning. It is dependent on the main clause for expressing a complete meaning. Now children, as we go on solving this exercise, it will be more clear. It is going to be clearer to you, right? So let us begin the exercise. What have I given? Underline the principal clauses and circle the subordinate clauses. So children, what do you need to do? You need to underline the principal clauses and circle the subordinate clauses in the sentence. So let us begin. We worked until the lights went off. Children, before starting the exercise, let me tell you that subordinate clauses usually begin with a conjunction or a relative pronoun. Conjunctions are joining words. Name some conjunctions. Let me call it out for you. Conjunctions like as, for, because, until, unless, therefore, hence, since, before, after, all these are your conjunctions, right? And relative pronouns, that, which, whom, whoever, whose, right? All these are your relative pronouns. At the end of this video, I will give you the conjunctions and the relative pronouns with which a subordinate clause begins, right? So now
you have to just keep in mind that a subordinate clause begins with a conjunction or with a relative pronoun, right? Now let us begin the exercise. The first sentence, we walked until the lights went off. So children, let us first of all find out the subject verb combination, right? See, we is the subject, worked is the verb. Children, here we have got the subject verb combination, right? So can we call this to be a clause? Yes. Why? Because here we have got subject and verb combination. So this is a clause. We worked. Now children, if we take this group of words as a clause, can this clause express a complete meaning? We worked. Yes, it is expressing a complete meaning. So since it is expressing a complete meaning on its own, we will call this principal clause. Children, you can also call it main clause or independent clause. So let us underline, because here it is said underline the principal clause. So here I am underlining the principal clause and writing P.cl, which stands for principal clause, right? So we worked. Here we have got the subject verb combination, so we can consider it to be a clause. Secondly, we worked. It is a complete sentence on its own. It is expressing a complete meaning, so we will call it a principal clause. Now let us see the next part of the sentence. Until the lights went off. Now children, I told you that subordinate clause starts with a conjunction or with a relative pronoun. Children, can you see here until? Until is a conjunction. So until the lights went off. So this is a subordinating clause. How do we know that it is a clause or not? Let us find out that this clause has a subject verb combination or not. The lights, until the lights. यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? The lights के बारे में बात कर रहे हैं. इसीलिए the lights हो गया subject. The lights went off. Went off is the verb. So children, here also we have got the subject verb combination. So we have got the subject verb combination means it is a clause, right? Now let us see whether it expresses a meaning on its own or not. So this clause starts with the conjunction until, right? So when the clause starts with a conjunction or with a relative pronoun, it is called a subordinating clause. This part we know. Second part is that a subordinating clause doesn't express a complete meaning. Let us see. Until the lights went off. If we start the clause from here, until the lights went off, is it expressing a complete meaning? No, it is not expressing a complete meaning. Until the lights went off. ये कोई complete sentence हुआ? नहीं हुआ, right? So it is not expressing a complete meaning, right? So it is a subordinate clause because it is not expressing a complete meaning, right? But see children, so here what it is said, circle the subordinate clause. So we will circle it. So two things you have to keep in mind children. What are the two things? That subordinate clause begins with a conjunction or with a relative pronoun. Secondly, subordinate clause doesn't express a complete meaning, right? But children, if you read this subordinate clause along with the principal clause,
you will find that it is expressing a meaning. देखो ये subordinate clause जो है वो अपने आप में कोई complete meaning express नहीं करता है, लेकिन अगर तुम इस clause को principal clause के साथ पढ़ोगे तो देखना कि ये एक meaning express कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज और द प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। क्यों डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं? क्योंकि वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज तीनों एक ही है, सिर्फ नाम अलग है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो खुद से मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। उसको जब हम लोग मेन क्लॉज के साथ पढ़ेंगे तब वो कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करेगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, until the lights went off, it is not expressing a complete meaning। ये कोई भी complete meaning express नहीं कर रहा है, लेकिन इसको जब हम लोग मेन क्लॉज के साथ पढ़ेंगे, we worked until the lights went off। देखो जब हम लोग मेन क्लॉज के साथ पढ़ रहे हैं तब क्या हो रहा है? सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं? सो व्हेन वी रीड द सबऑर्डिनेट क्लॉज अलोंग विद द मेन क्लॉज वी फाइंड दैट इट इज एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट मीनिंग। तो इससे क्या पता चलता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो अपने आप खुद से मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता है। राइट, सो सी वी वर्कड अंटिल द लाइट्स वेंट ऑफ। हम लोग काम किए till the lights went until the lights went off। लाइट जाने तक हम लोगों ने काम किया। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। We will win the match if we practice hard। पहले हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस को दो भाग में भाग कर लेंगे, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। चिल्ड्रन, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स विद अ कंजंक्शन। यहाँ पे कंजंक्शन दिख रहा है, हाँ, इफ इज द कंजंक्शन। सो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कहाँ से शुरू होता है? वो इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कंजंक्शन और विद अ relative pronoun। So here it begins with a conjunction। ठीक है, दूसरा चीज क्या देखना है हम लोग को कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्लॉज है, कैसे बोल रहे हैं क्लॉज है? क्लॉज रहने के लिए कौन दो चीज रहना जरूरी है? एक हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब। सो लेट अस सी वेदर देयर इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और नॉट। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वी हो गया सब्जेक्ट, विल विन हो गया वर्ब। तो यहाँ पे हम लोग को सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। मतलब ये हुआ कि ये एक क्लॉज है, क्योंकि हम लोग के पास बोथ सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसीलिए इट इज अ क्लॉज। अभी देखना ये है कि ये मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोई कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। राइट, सो वी विल विन द मैच, वी विल विन द मैच, वी विल विन द मैच। अगर हम लोग इस मेन क्लॉज को सिर्फ लेंगे तो अगर हम लोग ये क्लॉज को लेंगे तो देखते हैं कि ये अपने में एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं। वी विल विन द मैच, हम लोग मैच जीतेंगे। ठीक है,
ये अपने में एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये अपने में पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। इट इज़ एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट मीनिंग, सो इट इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज। अभी देख लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दो चीज़ देखेंगे। पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होगा एक किसी कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से, तो यहाँ पे ये इफ कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि ये अपने में कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं। इफ वी प्रैक्टिस हार्ड, अगर हम लोग सिर्फ इसी पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखेंगे, इफ वी प्रैक्टिस हार्ड, क्या ये मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है? क्या ये कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं। इफ वी प्रैक्टिस हार्ड, इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट मीनिंग। जैसे लग रहा है कुछ मिसिंग है सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है जैसे सेंटेंस, राइट? तो इस क्लॉज को हम लोग क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। वी विल कॉल दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज। Here also we will call this subordinate clause. Subordinate clause को हम लोग को क्या करना है? सर्कल करना है। और अगर आप पूछे मैम you said it is a subordinate clause, but आपको कैसे पता चला कि ये clause है या नहीं? क्योंकि हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे subject और verb का combination मिल रहा है या नहीं। If we practice hard, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वी हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गया? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो गया वर्ब। तो हम लोग को सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, तो फिर ये कंफर्म है कि ये क्लॉज है। अभी दूसरा कंफर्मेशन क्या चाहिए? कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसे पता चलेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने में, अपने से कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता है। तो ये देख लो, इफ़ वी प्रैक्टिस हार्ड, क्या ये अपने से कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं। लेकिन अगर इस क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज के साथ पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करेगा। जैसे वी विल विन द मैच इफ वी प्रैक्टिस हार्ड। अभी ये मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट meaning, right? Now let us move on to the next sentence. Monica cut the vegetables but Lata cooked them, right? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कितना क्लॉज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये क्लॉज है भी या नहीं। क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोनिका के बारे में। सो मोनिका इज द सब्जेक्ट एंड कट इज द वर्ब, राइट? सो यहाँ पे हम लोग को सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्लॉज है। मोनिका कट द वेजिटेबल्स, क्या ये अपने में एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। मोनिका कट द वेजिटेबल्स, इट इज़ एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट मीनिंग। तो ये हो गया मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये अपने से ही एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। सो वी कॉल दिस अ प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज को क्या करना है? अंडरलाइन करना है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। हम लोग इसको मेन क्लॉज भी लिख सकते हैं, राइट? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बट लता कुक्ड देम, यहाँ पे ये भी एक क्लॉज है या नहीं? कैसे पता चलेगा?
सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन खोजना है। तो देखो यहाँ पे लता के बारे में बात कर रहे हैं, तो लता हो गया सब्जेक्ट और वर्ब हो गया कुक्ड। तो यहाँ पे हम लोग को सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया है। इसका मतलब ये भी एक क्लॉज है। और देखो क्लॉज किससे शुरू हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग विद अ कंजंक्शन वर्ब। मैंने पहले ही कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमेशा कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। तो यहाँ पे इट स्टार्ट्स विद अ कंजंक्शन बट। अब ये देखते हैं कि ये कैसे मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता है। बट लता कुक्ड देम, अगर तुम सिर्फ इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखोगे, बट लता कुक्ड देम, क्या ये कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज खुद मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, उसको प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होना है। So, but Lata cooked them. We have to circle this because this is your subordinate clause, right? But Lata cooked them. ये अपने में मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, लेकिन इसको अगर हम लोग मेन क्लॉज के साथ पढ़ेंगे तो ये मीनिंग एक्सप्रेस करेगा। देखो, मोनिका कट द वेजिटेबल्स बट लता कुक्ड देम। तो क्या हुआ? जब एक साथ पढ़ रहे हैं तब ये मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट मीनिंग। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द रॉबर्स एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? द रॉबर्स के बारे में। तो द रॉबर्स हो गया सब्जेक्ट, वर्ब कहाँ मिल गया? एस्केप्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया है। द रॉबर्स एस्केप्ड, ये अपने में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज, राइट? तो द रॉबर्स एस्केप्ड, ये अपने में एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन इसको देखते हैं, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ये बिफोर क्या है? बिफोर इज अ कंजंक्शन, बिफोर इज अ conjunction, right? So I already told you that the subordinate clause begins with a conjunction or a relative pronoun. So here it begins with the conjunction before, right? Before the police arrived. पहले तो देखना पड़ेगा ना कि ये क्लॉज है भी या नहीं। तो किसके लिए क्या देखेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? द पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पुलिस हो गया सब्जेक्ट, अराइव्ड हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। अभी देखते हैं बिफोर द पुलिस अराइव्ड, क्या ये अपने में कोई कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं। बिफोर द पुलिस अराइव्ड, it is not expressing a complete meaning, so it is a subordinate clause. But इसको जब हम लोग मेन क्लॉज के साथ एक साथ पढ़ेंगे, the robbers escaped before the police arrived, now it is expressing a complete meaning, right? So what we will do? So this clause, this subordinate clause is dependent on the main clause for expressing a complete meaning. ये proved हो गया है। Now let us come to the next sentence. When the plane landed, the passengers got off. Right? यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about the plane. तो plane हो गया subject, landed हो गया verb, right? तो यहाँ पे हम लोग को subject और verb का combination मिल गया, मतलब ये हो गया clause। अभी ये देखना है कि ये मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। When the plane landed, ये देखो, ये when जो है ये क्या है? It is, what is it? When is a conjunction, so it begins, this
phrase, this clause begins with the conjunction when the plane landed. अगर हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे सेंटेंस को, when the plane landed, क्या ये कोई कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं कर रहा है. और सेकेंड चीज़, इट इज़ बिगिनिंग विद अ कंजंक्शन when. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज है? क्योंकि ये अपने से कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. सेकेंडली, इट इज़ बिगिनिंग विथ अ कंजंक्शन when. अब ये देखते हैं, द पैसेंजर्स गॉट ऑफ. द पैसेंजर्स गॉट ऑफ, पैसेंजर्स उतर गए. कंप्लीट सेंटेंस है ये. कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है. यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? द पैसेंजर्स के बारे में. तो ये हो गया सब्जेक्ट और गॉट ऑफ हो गया वर्ब. तो यहाँ पे हम लोग को सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, मतलब ये हो गया क्लॉज. और ये क्लॉज एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने में ही कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है. द पैसेंजर्स गॉट ऑफ, द पैसेंजर्स गॉट ऑफ, पैसेंजर्स सारे उतर गए. तो इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज़ एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट मीनिंग, राइट. तो इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज. ठीक है, क्योंकि ये अपने में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है. लेकिन ये वाला क्लॉज जो है व्हेन द प्लेन लैंडेड, ये अपने में कोई भी कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. लेकिन ये वाले क्लॉज के साथ जब हम लोग ये वाला क्लॉज जुड़ देंगे, जब एक साथ पढ़ेंगे इसको, तब ये क्लॉज मीनिंग एक्सप्रेस करेगा. जैसे when the plane landed, the passengers got off. Now this is making sense, right? So this is called the subordinate clause. ये main clause के ऊपर dependent है complete meaning express करने के लिए. इसके लिए इसको कहेंगे हम लोग subordinate clause. We can also call this dependent clause. We can also call this dependent clause. Okay children, I hope you have understood the difference between main clause and subordinate clause. I hope it is clear to you. In my next video, I will explain the different types of clauses, right? So wait and watch my next video. Thank you for today.